instruments about. So the thing is, as you know, that solar flares are the energetic and explosive energy release in few seconds to minutes time scale, and it is order of 10 to 27 arcs to 10 to 32 arcs. Now the thing is, these solar flares, why it is important, as because the solar flares actually tells the dynamics and activity in the sun. So the thing is, what there are two unique instruments built by URAO Satellite Center that is going to cover the solar flares from 1 kV to extremely high energy, about 200 kV, and we know that visible sun is only 6000 degree Kelvin temperature, whereas the outer surface of the sun is million degree Kelvin. So the thing is, why there is disparity. So I think these two instruments, along with the other two instruments, VLC and SUIT, we are going to address this $1 million questions, as well as why there is difference. Thank you. Thank you very much, sir. And now I'd like to go back to Dr. Anil Bharadwaj. So there are many satellites that are sent to the space by other nations. So what makes Aditya L1 different from these satellites? Well, that's a very good question, because first of all, let me again tell you that India will be the third, or ISRO will be the third space agency to have a mission at L1 point. And I just mentioned that it is multi-wavelength, multi-instrument and multi-direction, and it measures particle, field and radiations. So you don't have such kind of satellites existing at L1 point so far and currently. That makes Aditya L1 absolutely unique, because we are going to measure remotely, in situ, and particles and fields. I was also mentioning about multi-direction, and that is coming from the ASPEX payload, which stands for Aditya Solar and Particle Experiments. And this is going to measure particles ranging from 100 EVs going to several MeVs, which is essential for us to know, because when the CMEs are happening, or the sun is quite angry, the plasma which is coming out from the sun ranges from several EVs to several MeVs. And therefore, we should know in what direction the plasma is coming, and whether the plasma is getting accelerated in between when it comes from sun towards earth. And therefore, there is a multi-direction information which is available from the ASPEX payload, because it consists of two sensors, SWIS and STEP, essentially giving you in two different energy bands, and therefore we'll be able to quantify the CME, CIRs and all the process which is happening on the sun, which gives out coronal mass ejections. Thank you. Thank you very much, sir, for your remarks. And now finally we move on to the principal scientist, Dr. Sankar Subramaniam. So how does the Indian science community seek to capitalize on ISRO's space capabilities, especially these observatory missions like Astrosat and Aditya L1? Yeah, so now ISRO has established that it has a capability to send observatory class missions anywhere in the interplanetary medium. ISRO also is developing capability for small satellite missions like NanoSat, CubeSat, as well as the small satellite capability. That is something which especially a heliophysics community could utilize it, because we can, at a low cost, we can launch many more such instruments which are essential for heliophysics community here in India. So, and also the bigger mission takes its own life cycle, because it requires technologies to be developed for a bigger missions. So in between these big missions, if we capitalize on these small satellite missions, and that will enhances the science capability of our country to the next level. And as you know, the science and technologies are always synergized. As the technology improves, your science improves. When I started my career in solar physics, I started with a photospheric magnetic field. Now we are in a position where we can do coronal magnetic field with Aditya L1, which was not feasible when I was doing my PhD. So similarly, as we move on and as the technology starts to improve, we would be able to generate much more capable instruments, much more compact instruments, which will enable us to do much more science than what we can currently do. So we look forward to capitalize on ISRO's capabilities, both at the large scale as well as at the small scale instruments, and also its capability for developing new technologies in the near future. Thank you very much, sir. That was very interesting. And to end this, I have a last question to Dr. Dipankar Banerjee.
and it's about what kinds of outreach is possible through this launch to energize the scientific community. This is a very, very important question, and we are proud to be Indian now after the Chandrayaan success. I think it's just not the students; it's the entire country is excited, and we got this opportunity to now travel towards Sun. So it is very important that the younger generation, comes into the research and also utilizes the data. These scientific missions are for the community, and it has to be the community driven. So some of our scientists, who have been engaged with this mission for decades, we understand what is expected to be, this data. But the younger generation, they need to be trained. And so for that reason, we also have a Aditya support cell at Nainital, and we are going around in the country. We are regularly conducting workshops. So through these workshops and training program, we really want to reach out to other, people who are particularly in the universities or IITs, because they have so far not been directly involved with the Aditya mission. So I think we are really, really going out, and we expect that the youngsters, the next generation will come and utilize this data, because the data is for the community. So unless, we have more users, we will not be able to effectively utilize the data, scientific data which is coming, and the way we can help the community at large. Thank you. Thank you very much, sir. I think it is very important for us also to reach out to schools and colleges, because the younger generation should be told about this kind of activities which is happening in the country. Chandrayaan 3 launch has galvanized the whole nation, and everybody is interested to know what all is happening in the science and technology within the country. And therefore, this mission, along with the Chandrayaan 3 mission, that is the Aditya mission and Chandrayaan 3 mission, is going to give us a lot of new information which is going to be very beneficial for the country. Thank you. Thank you very much. Thank you everybody for participating in this discussion. And now we move on to the control room. Thank you, Srinidhi, and I thank all the panelists for enlightening us about the high-tech science that Aditya L1 is about to do. जी हाँ, अभी आपने सुना इसरो के तथा अन्य संस्थानों के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने हमारे बहुत महत्वपूर्ण सवालों के बहुत ही रोचक उत्तर दिए हैं। इस दौरान चतुर्थ चरण के बर्न 1 को कंफर्म किया गया है फिजी टेलीमेट्री स्थित स्टेशन से। इसमें यान में होने वाले त्वरण के बदलाव को मापा जाता है और इससे पता लगाया जाता है कि यान के इंजन में शुरुआत हुई थी या नहीं, और इसकी पुष्टि कर ली गई है। लेकिन अभी भी यान हमारे दृष्टि से बाहर है, हमारे ट्रैकिंग रेंज से बाहर है, लेकिन इसकी यात्रा अभी जारी है। और अब हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह पूर्वानुमानित पथ दिखाया जा रहा है। यह अनुमानित पथ है। ग्राउंड स्टेशन से पुष्टि होने के पश्चात यहाँ पर इसकी पुष्टि की जाएगी। आज 11:50 पर प्रमोचित हुए PSLV C-57 रॉकेट की यात्रा अभी भी जारी है। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय चरण के सामान्य कार्यकाल के पश्चात इन्हें यान से पृथक कर दिया गया था। और फिर टर्मिनल acquires telemetry signal. जी हाँ, इसकी पुष्टि हो गई है। शिप बॉर्न टर्मिनल से हमारे यान को ट्रैक कर लिया गया है। At present, ground trace and FPD are updated based on real-time data. अब हमारे ग्राफ को वास्तविक समय से दिखाया जा रहा है। यह वास्तविक डेटा है जो अब हम देख पा रहे हैं। Welcome back to the live coverage of PSLV C-57 Aditya L1 mission. The launch took place at 11:50 hours Indian Standard Time from the second launch pad at Satish Dhawan Space Center, Shar, Sriharikota.
The first, second, and third stage of the launch vehicle have performed normally, and the launch vehicle was in the no visibility range for the ground tracking stations. Shipborne terminal in Pacific Ocean has started to acquire signal 51 minutes into the flight. अब कुछ ही क्षणों में हम चतुर्थ चरण के पुनः प्रज्वलन को देखेंगे। In the past 26 minutes or so, the ground trace for the flight was being updated by extrapolation. Fourth stage engine started for band 2. यहाँ अभी रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर ने इसकी पुष्टि की, चतुर्थ चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। यह पुनः प्रज्वलन है PS4 का कोस्टिंग फेज के पश्चात। यह वास्तविक समय पे हमें यहाँ आंकड़े उपलब्ध हो रहे हैं क्रूज स्टेशन से। Very happy Fourth piece of stage news here. performance normal. Range Operations Director has confirmed the second burn commencement for the PS4 stage. Around 14 more minutes to go for the spacecraft injection. जी हाँ, अभी भी लगभग 14 मिनट बाकी हैं हमारे अंतरिक्ष यान आदित्य L1 को अंतक्षेपण के लिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस कालावधि जब अंतरिक्ष यान या हमारा यान हमारी दृष्टि से दूर हो जाता है, इस कालावधि में ग्राउंड स्टेशन की दृष्टि से बाहर जा चुका होता है और यान के ऑनबोर्ड कंप्यूटर पर टेलीमेट्री स्टोरेज पर यान के महत्वपूर्ण आंकड़े सेव किए जाते हैं। जब यह हमारे तय ग्राउंड स्टेशन की रेंज में आते हैं तब इन आंकड़ों का प्रसारण होता है और वहां से इनकी पुष्टि की जाती है कि यान इस दौरान किन गतिविधियों से गुजरा। Fourth stage performance normal. The fourth stage performing normally. The second burn is expected to last for 472 seconds. यह चतुर्थ चरण है PSLV XL रॉकेट का। इसमें 2.5 टन के नोदक का इस्तेमाल हो रहा है। यह तरल नोदक हैं। इसमें 2 इंजन लगे होते हैं, हर एक 7.33 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है। इस तरह कुल प्रणोद 14.6 किलो न्यूटन का होता है। प्लस 55 मिनट्स इस प्रज्वलन काल में इसे 472 सेकंड तक प्रज्वलित रखा जाएगा। वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं। We are close to 55 minutes 30 seconds past the launch. PS4 stage currently burning for the second time. Fourth stage performance normal. आप देख रहे हैं आवाज इंडिया लाइव चैनल। इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर आ रही बिहार से कटिहार बरारी थाना क्षेत्र के सेमा पुरोपी के कावर पंचायत वार्ड नंबर 9 पिपरिया टोला में महिला के साथ छेड़खानी का आरोप लगाकर एक व्यक्ति के साथ जमकर मारपीट की गई। लोगों के मारपीट से युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इस घटना के बारे में घायल युवक आनंद कुमार पिता कैलाश मंडल ने बताया है कि उनकी महिला फोन कर बुलाया था और ग्रामीणों के सहयोग से महिला ने मिलकर बुरी तरह से गंभीर रूप से घायल कर दिया।
आनंद कुमार मिल बराबर जाया करते थे। वे मिल जाने के क्रम में मिल मालिक राजीव कुमार की पत्नी एक दूसरे को प्यार हो गया। यह प्यार 3 महीने से चल रहा था। जब राजीव कुमार घर में नहीं थे तब आनंद कुमार को फ़ोन कर बुलाया कि आज घर में कोई नहीं है। जब आनंद कुमार गए तब पहले से ग्रामीण छुपकर बैठे हुए थे। पहुंचते ही उनका धुनाई कर डाली। इसकी सूचना जिला परिषद और कांवर पंचायत सरपंच सत्येंद्र दास को मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर घटना के जायजा लेते हुए सेमापुरोपी को सूचना दी गई। सेमापुरोपी की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए। आनंद कुमार को अपने हिरासत में ले लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गए। देखिए एक रिपोर्ट शैल कुमार के साथ। क्या मामला है? लाठी से मारा है। कौन मारा है? नाम रह जानते हैं। महिला के साथ छेड़छाड़ और परेशान करने का आरोप आप पे लगा है? नहीं, वो सब कुछ नहीं रहा। आप उसके घर पे क्या करने के थे? फोन किया हमको सारे वही 8:53 में, तो बोला आने के लिए। फिर हम नहीं आ रहे थे, फिर 9:30 बजे फ़ोन किया तो उसी टाइम आए। जैसे कि अंदर किया, उसके बाद लाइट भी बंद किया। लाइट बंद करके वो चौकी था जो अंदर में घुसा दिया और इधर से 2-3 गोल गया और लाठी से मार दिया। कितना दिन से आप परेशान कर रहे थे उसको? किसको? महिला को। परेशान हम नहीं कर रहे थे, तो वही फोन कर रहा था। हम ढेरी नंबर से हमको किया, एकदम नया नंबर से करता इधर से। क्या कहता था फोन करके? ऐसे बोलता था आने के लिए ही। आके पूछे तो होंगे ना काहे बुला रहा था? कोई तो वजह होगा। प्रेम प्रसंग था क्या आप दोनों में? बात हो रहा था। रात के अंधेरे में इतनी लेट के बाद जाना किसी महिला के घर में कहाँ तक उचित है? उचित है, फोन किया इसीलिए हम आ गए। नया नंबर से फोन करा था। 195 वाला भी है, 60 वाला, 33 वाला, 45 वाला, 12 वाला थे, बहुत नंबर है। तो फिर मारपीट कैसे लगा? मारपीट लगा, वही बोला कि मारपीट किया। क्या नाम है आपका? आनंद कुमार। घर का? पिताजी का नाम क्या? और किस जगह? लड़की का घर कहाँ है जहाँ आप आए थे? जगह का क्या नाम है? आपका घर किस नंबर वार्ड में? 1 नंबर वार्ड। यहाँ पर क्या करने आए थे आप रात में? हम किया था 6 बजे शाम में हमको। उसके बाद फिर किया 8:53 में। बोले आने के लिए जाऊँ, बोल रहा था। हम ना आ रहे थे तो हम रास्ते से घूम गए। फिर उससे फोन किया। कौन बुलाया था? खुशबू कुमारी। खुशबू कुमारी कौन है? क्या करती है? क्या करती है वो? मिल चलाती है। आवाज में बोलिए। आप कितने बजे रात में आपको बुलाया? वही 9, 9:30 बजे फिर से फोन किया ना। हाँ। तो हम आए। आने के बाद फिर क्या हुआ? जैसे गया अंदर में गया तो वही चौकी तर में घुसा दिया और 2-3 को मिल के लाठी से मारने लगा आपको। ऐसा कहा है मारपीट क्यों हुआ? क्या कारण था मारपीट करने का? क्या आपको लोग बुला के मारपीट किया क्यों? वो जब फोन किया ना हम आए, इसीलिए। क्या कह के फोन की थी? क्या कह के बुलाई थी वो? बोला कि आओ तो यहाँ। हाँ, ऐसे आप आ गए? आप उससे पूछे नहीं कि हमको रात में काहे बुला रहे हैं? सब आपका घर कहाँ है? हाँ? नाम? आप क्या करते हैं? टेम्पो चलाते हैं। हाँ? टेम्पो चलाते हैं। टेम्पो चलाते हैं? और भी कोई काम करते हैं? ये लोग तो बोल रहे हैं कि चक्की कूटता है, आटा चक्की कूटता है। चक्की कूटने के लिए आए थे एक बार। वो भी काम करते हैं? हाँ। क्यों दे रहे थे उसके हस्बैंड को आप? हम धमकी नहीं थे। हम फोन किए तो बोले कि 33 वाला और 60 वाला 195 वाला फोन करता है उधर से। हाँ। बस यही बात बोले हैं। तो धमकी काहे दी है आप? क्या चीज का धमकी? हम धमकी जान से मारने का उसके हस्बैंड को? हाँ, बोला गोली मार बोला गोली मार देंगे हम बोल रहे हैं ना। स्वाभाविक बोला है अपने मुंह से। क्या वो सब धमकी नहीं, गोली मारने। रिकॉर्डिंग भी ये बोल रहा है अगला। वैसे बोलता है। ऐसे थोड़े कोई बोल रहा है। ऐसे झूठ बोल रहे हैं। जी सर।
क्या घटना घटा है? घटना यही है कि हम इसको इससे पहले मतलब चक्की उक्की कूटने के लिए मिल पे आता था। उसके दरमियान ये नंबर ले लिया। नंबर लेने के कारण ये बार बार हमको टॉर्चर करने लगा। टॉर्चर करने के कारण हम बात नहीं करते हैं इससे। रात में क्या हुआ, फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद बात नहीं हुआ। नंबर ब्लैक लिस्ट में था। दूसरा नंबर से किया, नंबर भी वो वाला भी नंबर ब्लॉक हो गया। उसके बाद 11 बजे इस घर में कोई नहीं था। इसको पता लगा। उसके बाद ही आया डायरेक्ट घर पे 11 बजे। हम लोगों को कुछ भी पता नहीं। घर आने के बाद डायरेक्ट जो घर खोल के भी घुस गया। घुसने के बाद मतलब हमको जगाने लगा तो हम हल्ला किए, कौन है। उसके बाद मेरी नंदोसी है, नंदोसी तब जाके उसको पकड़ के रखा। कौन लड़का था? लड़का का क्या नाम है? आनंद कुमार। घर कहाँ का है? गुंजरा का। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वही बांध के सबको रखे। लड़का का जबरदस्ती घुस रहा था आपके घर में? हाँ। कितना दिन से जानते हैं उसको? यही 2-3 महीना से, जब चक्की कूटने लगा था। परेशान कब से करता था? परेशान यही तो 2-3 महीना से कर रहा था। जब मेरा पति नहीं रहता है तब परेशान करता है। इसका जानकारी अपने हस्बैंड को दिए थे? जी। क्या उनका क्या कहना? मतलब बात नहीं करते हैं ना, नंबर ब्लॉक कर दिया तो मेरा पति भी फोन करके धमकी देता है। क्या कहता था? कि बोलता है कि गोली मार देंगे जो बात कीजिएगा अपना पत्नी से। आगे क्या कुछ सोचे हैं, क्या करना है अब? करना है ऐसा सब आदमी को जो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। प्राप्त हुआ आपको? जानकारी ये प्राप्त हुआ है, ये फोन करके राजीव साहब को धमकी देता है, गोली मार देंगे, भोजली जगह नहीं तो बीवी छोड़ के सुतो, ऐसे बोलता है। बीवी को छोड़ के सुतो ऐसे धमकी देता है रात में फोन करके। और मेरा माँ बहन को सबको अलग अलग नंबर से परेशान करता है फोन करके, भोजली छोड़ ऐसे। कब जानकारी मिला आपको ऐसा? अरे भाई साहब, हमको 2-3 दिन पहले जानकारी चला, इसका घर पे गए, सलाई घर पे नहीं मिला हमको। अब वहाँ घर पे जाके फोन किया तो बोले तुम्हारा घर पे है, हम तुम आओ, क्या करेगा हमको। रात में क्या घटना हुआ? रात में हम नहीं थे, हम दिन में आए हैं। क्या पता चला, क्या हुआ था? हमको इतना पूछे हम बता दिए। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया लाइव चैनल। इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर आ रही बांदा से। बेलदान गांव में खेत गए 45 वर्षीय किसान ने खेत पर लगा आग किया खुदकुशी। पुलिस ने किसान के शव का करवाया पोस्टमार्टम। मृतक रात घर से खेतों में जानवर भगाने व रखवाली के लिए गया हुआ था। स्वजनों द्वारा खुदकुशी का कारण कर्ज से परेशान होना बताया गया। मृतक के 2 महीने पहले अपने एक पुत्री की शादी की थी, जिसके बाद से मानसिक रूप में रहता परेशान। आपको बता दें कि पूरा मामला बिसंडा थाना क्षेत्र के ओरन चौकी अंतर्गत बेलदान गांव का है, जहां के निवासी किसान शारदा पुत्र राम कुमार 45 वर्ष व 30 तारीख की रात को अपने घर से खाना खाकर धान की खेतों की रखवाली को निकले थे। जब सुबह मृतक की पत्नी रन्नो के खेत गई और तो उसको खेतों में पति झुलसा हुआ पड़ा मिला है, जिस पर घर वालों की सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे घर वालों ने शारदा को उठाकर आनंद फानन में निजी साधन द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर सुनते ही परिवार में शोक की लहर दौड़ पड़ी। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने पूछताछ के पश्चात सबको पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु जिला मुख्यालय मृतक शारदा के 4 लड़के व 3 लड़कियां, जिसमें 3 लड़कियों व 1 लड़के का विवाह हो चुका है। मृतक दामाद द्वारा बताया कि 2 माह पहले उसने एक पुत्री का विवाह किया था, जिस कारण से 2 लाख का कर्ज हुआ उसने गांव के लोगों से ले रखा था, जिससे वह परेशान रहता था। वह स्थानीय पुलिस ने बताया कि जांच की जा रही। कर्ज जैसी कोई बात अभी तक सामने नहीं आई। देखिए एक रिपोर्ट योगेंद्र प्रताप के साथ। भैया क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार, ग्राम शिवहर। जी, मृतक कौन है आपके? ससुर साहब है। ससुर साहब है, बड़े दामाद है उनके। जी, क्या घटना हो गई? घटना सर कोई मालूम नहीं, लेकिन आग लगाई मिली। जब सुबह इनकी मम्मी गई तो सुबह मिली है वो लोग, तब पता चला तो लेकर के आए सरकारी अस्पताल में बबेरू में लेके भर्ती किया गया। तो भर्ती करने से पहले जब गाड़ी पहुंची वहाँ पे एम्बुलेंस तो खत्म हो चुके थे। किस गांव की घटना है? ये बेलदान गाँव की घटना है। कितनी तारीख की है? ये 30 तारीख की शाम को गए थे, 31 तारीख को सुबह हुई है।
लगता है क्यों इन्होंने ऐसा किया होगा? टेंस लाइट थे और धान वान बोए थे, इसके भी टेंस लाइट थे, पानी वानी न लगना के कारण, बसने के कारण थोड़ा कर्ज ले रखे थे 1.5-2 लाख रुपए, ऐसे टेंस लाइट के रहते थे। कर्ज क्यों ले रखा था इन लोगों ने? लड़की की शादी करने के लिए लेते हैं। क्या बैंक से लिया था या कहीं? बैंक से नहीं, प्राइवेट लिया था। ऐसे लिया था? गाँव से। तो उससे परेशान होते थे? हाँ जी, उससे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता। मृतक की कौन है आप? मरने वाले की कौन है? बिटिया। बिटिया। हाँ। क्या घटना हो गई? सर जी खेत गए थे और खेत में जब पता नहीं कहा हम जाते हैं, धान बोए थे तो धान देखने गए थे इन लोग। अब धान देखने गए थे तो हम इधर उधर देख, अब आया नहीं लौट के, हम इधर उधर देखा तो हमें नहीं दिखाई दिया, हम कहा आ जाएगा। अब बस जब सुबह देखा तभी नाता वो हो गया। किस तारीख की घटना है ये? सर जी अभी ये पता नहीं है कि किस तरह की आग की है, कहे की है। भैया क्या नाम है आपका? लवकुश। लवकुश। भैया क्या घटना हो गई? मृतक कौन है आपका? पिताजी। पिताजी क्या नाम है, कितनी उम्र है? शारदा नाम है, 45 वर्ष। भैया क्या घटना हो गई, कैसी घटना हुई? बस शाम को बोल के गए थे कि खेत जा रहे हैं, बस वहीं पर हो गया। किस तारीख को गए थे खेतों की ओर? 31 को। 30 तारीख को। 30 तारीख को। 30 तारीख को गए थे? हाँ जी। तो आप लोगों को कैसे पता चला कि खेतों में पड़े हैं? सुबह मम्मी गई थी लेटिंग वेटिंग करने की, तब दिखा है। तो क्या जीवित थे या मौके में मौत हो गई? जीवित थे। जीवित थे। हाँ। फिर कहाँ लगे आप लोग? बगैरू सरकारी अस्पताल। जी। क्या काम करते थे पिताजी? मजदूरी करते थे। भैया क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार, ग्राम शिवहर। जी। मृतक कौन है आपके? ससुर साहब है। ससुर साहब है? बड़े दामाद है उनके। जी। क्या घटना हो गई? घटना सर कोई मालूम नहीं, लेकिन आग लगाई मिली। जब सुबह इनकी मम्मी गई तो उसमें मिली है वो लोग, तब पता चला तो लेकर के आए सरकारी अस्पताल में, बेबीरू में लेके भर्ती किया गया। तो भर्ती करने से पहले जब गाड़ी पहुंची वहाँ पे एम्बुलेंस तो खत्म हो चुके थे। किस गांव की घटना है? ये बेलदान गाँव की घटना है। कितनी तारीख की है? ये 30 तारीख की शाम को गए थे, 31 तारीख को सुबह हुई है। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया लाइव चैनल। इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर आ रही है उन्नाव से। लोक अदालत द्वारा सुलह समझौता को दिया जाए बल, जिसको लेकर चलाया जाएगा अभियान। उन्नाव लोक अदालत में ऋण संबंधी मामलों को सुलह से किया जाए हल। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाएगा प्रचार प्रसार ताकि लोगों तक पहुंच सके अभियान। लोक अदालत द्वारा ऋण संबंधी वादों को सुलह समझौते से वाद को निस्तारण किया जा सके। आने वाले 9 सितंबर को सुबह 10 बजे न्यायालय समय तक मामलों का निस्तारण किया जाएगा। लोक अदालत में सभी प्रकार के मामलों का निस्तारण निःशुल्क किया जाएगा। लोगों के जागरूकता के प्रचार वाहनों को लगाया गया। देखिए एक रिपोर्ट उन्नाव से गुड़िया रावत के साथ। और कमजोरों को मुफ्त एवं सक्षम कानूनी सहायता के लिए चाहती हूँ कि दिनांक 9 तारीख को शनिवार के दिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर अपने मामले का सुलह समझौता के आधार पर निस्तारित करवा लें, जिससे उन्हें अत्यधिक लाभ होगा। मैम, अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की जानकारी नहीं होती है लोगों को, वहाँ जागरूक करने के लिए किस तरह का अभियान चलाया जाएगा? इसके लिए हम लोगों ने प्रचार वाहन को रवाना किया है, जो पूरे जिले, तहसील और गांवों में घूमकर लोक अदालत का प्रचार प्रसार करेंगे कि ज्यादातर गांव के लोग यहाँ पर या ऋण संबंधी जो वसूली के वाद हैं वो यहाँ आकर अपने वादों का निस्तारण सुलह समझौते से करवाएंगे। मैम, ये किस दिन तक चलेगा लोक अदालत का काम? लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत 9 सितंबर को है। एक दिन सुबह से लेके सुबह 10 बजे से लेके न्यायालय कार्यावधि तक है। लगाने से क्या क्या दिन तक फायदा मिलेगा? लोक अदालत से पक्षों के मध्य आपसी सुलह समझौते के आधार पर विवाद का निस्तारण पक्षकार व्यक्तिगत स्तर पर स्वयं पहल कर सकते हैं। लोक अदालत में निस्तारण हेतु किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं होता है। लंबित मामले के लोक अदालत में निस्तारण पर न्याय शुल्क की वापसी की व्यवस्था है। लोक अदालत में निर्णय किए गए वादों के विरुद्ध कोई भी अपील दाखिल नहीं की जा सकती है और कानूनी जटिलताओं से परे लोक अदालत की प्रक्रिया सहज और आपसी समझौते पर आधारित होती है। क्या इसमें कोई तारीखें लगती हैं कि या लगी हैं?
इसमें 9 सितंबर लगी हुई है, दिन शनिवार है, जिसमें लोक अदालत का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर किया गया है। सभी प्रकार के शमनीय आपराधिक सुलह समझौते से निस्तारित होने वाले वाद, उत्तराधिकार से संबंधित सिविल मामले, वाद वापसी के मामले, बैंक ऋण वसूली, प्री लिटिगेशन, पारिवारिक एवं वैवाहिक मामले, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, श्रम संबंधी, भूमि अधिग्रहण, राजस्व, सर्विस मैटर, मनरेगा, व्यापार कर वाद, वजन व मापतौल अधिनियम, वन अधिनियम, उपभोक्ता फोरम, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, एनआई एक्ट के बाद, विद्युत एवं जल संबंधी अन्य वाद, आर्बिट्रेशन, आपदा राहत वाद, आयकर, यातायात चालानी आदि वाद संदर्भित किए जाते हैं। सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उन्नाव द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनांक 9 सितंबर 2023 दिन शनिवार को सुबह 10 बजे से कार्यावधि तक जनपद परिसर उन्नाव, न्यायालय परिसर पूर्वा, हसनगंज, सफीपुर, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण उन्नाव तथा कलेक्ट्रेट, समस्त तहसीलों एवं अन्य संबंधित विभागों में वादों के निष्पादन करने के लिए किया जाएगा। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया लाइव चैनल। इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर आ रही सुपौल बिहार से। पूरे सुपौल जिले के किसान अभी तक सिंचाई के लिए बारिश की राह देख रहे हैं। उनका ज़्यादा से ज़्यादा समय आसमान झांकते हुए बीत रहा है। किसान कई बार पूजा भी करा चुके ताकि इंद्रदेव मेहरबान हो गए, झमझम बारिश हो, अब उसकी मुराद पूरी भी। शनिवार से पूरे जिले में बारिश हो रही, इससे सिंचाई का संकट खत्म हो रहा है। किसानों के चेहरे पर खुशी लौट रही है। अभी तक धान की फसल सूखी मार झेल रही थी। जिन किसानों ने पंप सेट से सिंचाई करते दिखे हैं, इससे खर्च बढ़ रहा था। सिंचाई के बावजूद भी फसल सूख रही थी, लेकिन बारिश शुरू होती ही किसानों को राहत मिली। धान की फसल के साथ किसानों को मदद मिलेगी। दूसरी ओर धान की फसल में अगर पत्ता लपेट यानी लीफ होल्डर जैसी बीमारी का कोई प्रकोप होता तो बारिश से खत्म हो जाएगा। धान की फसल के लिए वह बारिश काफ़ी ज़रूरी थी, क्योंकि अभी किसानों के खेतों में धान की फसल फ्लोरिंग स्टेज पर है। किसान लालेश्वर यादव, राजीव यादव, रामकिशोर यादव, उमेश यादव, रामदेव यादव, विमलेश कुमार, रंजन कुमार, रोहित कुमार आदि लोग मौजूद रहे। देखिए एक रिपोर्ट आलोक बादल के साथ। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया लाइव चैनल। इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर आ रही सुपौल से। रोसड़ा थाना समस्तीपुर फुलवरिया में हुई नरसंहार का प्रसार आज जन अधिकार पार्टी द्वारा आक्रोश धरना प्रदर्शन का आयोजन रखा गया। इसमें बड़ी संख्या में जनता ने अपराधियों के खिलाफ एकजुटता दिखाए हुए अपना समर्थन किया। राज्य सरकार के मामले में न्याय की अपील। इस धरना प्रदर्शन में हम भी शामिल हुए और वहाँ मौजूद लोगों को संबोधित भी किया गया। अन्य और अपराधियों के सम्मत संघर्ष तथा तब तक करेंगे जब तक इनमें से आम लोगों की निजात न मिलेगी। देखिए एक रिपोर्ट दिनेश दिवाकर के साथ। आवाज दो हम एक हैं, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। जब जब जुल्मी कितना दमन में तेरे और लाठी गोली की सरकार, लाठी बंदूक की सरकार, अपराधी नेता माफिया गठजोड़ नहीं चलेगा। नेता माफिया गठजोड़ होश में आओ, नेता अपराधी माफिया गठजोड़ मुर्दाबाद, नेता माफिया गठजोड़ होश में आओ। न्याय हम लेके रहेंगे। हम क्या चाहते, पहले भी गाय दूने में मारते मारते मार दिया गया,
संतोष पासवान की हत्या हुई। और जब आप गौर है कि घटना के बाद यह घटना, तो घटना के बाद वो भागे कैसे? आपके गांव से तो नहीं भाग सकते। यदि वो भागे बाय वे तो सड़क से अपने गांव की ओर भागेंगे। कोई भी पदाधिकारी, कोई भी वैज्ञानिक एफएसएल टेक्निकल जांच कर ले, चौर के तरफ मोटरसाइकिल का कोई औचित्य नहीं है। पानी सड़क से 1.5-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर है। क्या हम दलदल में नहीं फंसे 3 आदमी? बैग मेरा बाहर रह गया। उन्होंने जो 1 लाख या 50,000 जो भी कमा के 1 साल के बाद आया होगा, वो पैसा कहाँ गया? और लाश कहां पर मिली? क्या मोटरसाइकिल सीधा भर छाती भर ऊपर पानी में चला गया? क्या हम बोट मशीन थे और हम तीनों जाके डूब गए? और जब डूबा वो भाग रहा था तो मात्र वहां से चौर की दूरी, उस गांव से चौर की दूरी 500 से 600 मीटर आप पीछा किए होंगे या देखे होंगे। तो जब डूब गया होगा तो उसके गांव को भी खबर करनी चाहिए। यदि आपने गांव को खबर नहीं किया तो थाना को खबर करते। आपका मोबाइल डिटेल देख लीजिए। नदी किनारे घर है तो सभी तैरने में सक्षम है। नदी है ही नहीं, घर जो है उनको घर तो नदी तक, नदी रोड से चौर कितना दूर? हम आप कह रहे मोटरसाइकिल से भागा, या मोटरसाइकिल से नहीं भागा, पैदल भागा। पानी में 2.5 फीट पानी और 2.5 फीट पानी। इसीलिए पहले पीट के हत्या की गई, बाद में उसको एसिड छींट करके आंख निकला हुआ, चीजें टूटी हुई। आप सब लोगों ने लाश को देखा। मेरा सीधा सवाल है कि हम चाहते हैं न्याय। इस घटना का उद्भेदन, एसआईटी जांच और एफएसएल की रिपोर्ट से लेकर टेक्निकल तरीके से इसकी जांच हो। चौथी चीज, देख रहे हैं आवाज इंडिया लाइव चैनल। इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर आ रही शिकोहाबाद से। दिनांक 2/9/2023 को फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुस्तफाबाद रोड स्थित गांव शोभनपुर के समीप स्टेशन से फरिया जा रहे मजदूरों से भरा ऑटो अनियंत्रित होकर कार से टकराता हुआ पलट गया, जिससे उसमें बैठे 10 मजदूर घायल हो गए, जिन्हें जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया। बताते चले कि फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन पर कुछ मजदूर कार्य करते हैं, जिसमें गांव इटहरी थाना फरिया जिला फिरोजाबाद के मजदूर कार्य करने आते हैं। वहां रोजाना की बात टेम्पो से अपने घर इटारी जा रहे थे। जैसे उनका टेम्पो जैसे मुस्तफाबाद रोड स्थित शोभनपुर के समीप पहुंचा ही था कि अनियंत्रित होकर कार से टकराता हुआ पलट गया, जिसमें टेम्पो में बैठे 10 मजदूर घायल हो गए। कुछ देर आसपास के लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं घायलों ने अपने नाम राजवीर, महेश, प्रदीप, मानिकपुर, कुंवर लाल, जसराज, नेकपाल, मुकेश, मुन्नेश, केशव देव तथा सत्य निवासी गांव इटारी थाना फरिया जिला फिरोजाबाद बताया। पुलिस ने सभी घायलों को जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार हो रहा है। देखिए एक रिपोर्ट अरविंद कुमार श्रीवास्तव के साथ। मुनीष भाई, ये क्या घटना हुई है जो आप लोग आए? शिकोहाबाद स्टेशन पर रेक का काम करते हैं और यहाँ से पलटनारी खत्म करके घर पर जा रहे थे फरिया जी टेम्पू में। टेम्पू का तेज गति नहीं था ज़्यादातर, पर तेज वहाँ जैसे गच्छा नहीं दिखा या दिख गया या कुछ भी सही ये नहीं पता, भगवान जाने। तो वहाँ उसको बचाने के चक्कर में उधर से कार आ रही थी साइड उधर से उसको जा रहा था, जाते वो खच्चा लगाया, उसके चक्कर में उसका बैलेंस बिगड़ा। बैलेंस बिगड़ने से संतुलन होके पलट गया। कितने लोग घायल हुए? हम 10 लोग। 10 तो 10 ही घायल हैं। 7 लोग ज़्यादा घायल हैं, 3 कम हैं। ठीक है, क्या मामला पूरा? ये 10 लोग आए, ऑटो से कहीं सफ़र करके जा रहे थे।
तो हमारे यहाँ ये 3:35 पर सभी लोग आए और सभी जो है घायल हैं। कितने लोगों की संख्या है इनकी? ये 10 लोग हैं, उनका जो है ट्रीटमेंट चल रहा है। इसमें गंभीर कोई है क्या? ज़्यादा गंभीर तो नहीं है, मगर 1-2 लोग गंभीर भी है। उनको रेफर किया जा रहा है? उनको रेफर किया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया लाइव चैनल। इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर आ रही सिकोवास से। आज दिनांक 2/9/2023 को फिरोजाबाद के सिकोवास क्षेत्र में शनिवार को बिजली चेकिंग करने गई टीम को विरोध कर सामना करना पड़ा। वहां पर लोगों ने टीम पर हमला बोल दिया, यहां तक कि टीम पर पथराव भी किया, जिससे बिजली विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद विभाग के अधिकारी और कर्मचारी थाने पहुंचे और तहरीर दी। फिरोजाबाद जिले की सिकोवाद में शनिवार को विद्युत विभाग के अवर अभियंता विवेक नारायण सिंह, रविंद्र कुमार, TN2, देवेंद्र सिंह, राजीव कुमार, कपिल तिवारी, धीरेन्द्र कुमार के साथ समस्त संविदा कर्मी एवं प्रवर्तन दल फिरोजाबाद के साथ काशीराम कॉलोनी के समीप बन रही नवनिर्मित कॉलोनी में बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाकर चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान कुछ व्यक्तियों ने विद्युत विभाग की टीम पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिससे टीम इधर उधर भागने लगी। आरोप है कि तभी युवकों ने टीम पर काफी दूर तक दौड़ाया। इसी दौरान विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने वीडियो और फोटो भी खींच लिए, जिससे आरोपी कैमरे में कैद हो गए। अधिकारियों ने बताया कि किसी भी प्रकार से वहां से जान बचाकर निकले। सूचना पुलिस को कर दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है, लेकिन तब तक आरोपी फरार हैं। इसी संबंध में अधिकारी और कर्मचारी थाना पहुंचे, आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी। वहीं पुलिस ने जांच शुरू कर दी। देखिए एक रिपोर्ट अरविंद कुमार श्रीवास्तव के साथ। मामला हुआ है, पूरा मामला बताइए। आज सुबह हम काशीराम कॉलोनी के पास में एक नई कॉलोनी कटी है, वहाँ पर विजिलेंस के साथ में बिजली चोरी रोको अभियान चला रहे थे। तो हमने कुछ घरों में बगैर कनेक्शन की लाइट चलती पाई, उसे चेक करने गए थे। जब उन लोगों से उनके नाम पते पूछने की हमने कोशिश की कि भाई आप अपने नाम पते बताओ, बिजली चोरी से चला रहे हो, तो उन लोगों ने झगड़ा चालू कर दिया, गाली देने चालू कर दिया और फिर जोश में आकर फिर उन्होंने हम लोगों पे पथराव कर दिए, ईंट फेंकाई करना चालू कर दिया। फिर हम सभी लोग विजिलेंस के साथ में अलग अलग दिशाओं में भागे, अपनी जान बचाते हुए। ईंट फेंक रहे थे वहीं पर, यानी कि सर फोड़ने की पूरी कोशिश करी उन्होंने। हम वहाँ से बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकल के आए और हमारे विजिलेंस के साथियों को उनने 2 किलोमीटर तक ईंट फेंकते गए उनके ऊपर। काशीराम कॉलोनी से घूमते हुए फिर वापस हमारे पास आए। फिर हमने पुलिस को बुलाया, तो करीब आधे घंटे बाद पुलिस आई। जब जाकर वो वहाँ से जब तक भाग चुके थे, उन तीनों अभियुक्तों की हमने वीडियोग्राफी भी की, जो हमने अपनी FIR में थाने में दे दी है। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया लाइव चैनल। इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर आ रही फिरोजाबाद से। आज दिनांक 2/9/2023 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा बाइक चोरों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर फिरोजाबाद के सफल परीक्षण में थाना उत्तर पुलिस टीम के द्वारा संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कड़ी मेहनत, लगनशीलता, तलाश वंचित चेकिंग, संगीत वाहन व युवतियों व अगस्त क्षेत्र में भ्रमण, पतासी, सुराक्षी व गिरफ्तारी, चोरी, लूट आज घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियान के तहत थाना उत्तर पुलिस टीम के द्वारा 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 5 मोटरसाइकिल भी बरामद। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त का नाम इस प्रकार है: अमृतलाल उर्फ मुरारी पुत्र हुकुम सिंह, निसार निवासी नगला बिना, थाना बसई, मोहम्मदपुर जिला फिरोजाबाद, उम्र 42 वर्ष। मुकेश पुत्र राम जी लाल, निषाद निवासी शंकरपुर, थाना बसई, मोहम्मदपुर जिला फिरोजाबाद, उम्र करीब 26 वर्ष। इन दोनों हथियों के साथ से 5 मोटरसाइकिल और बरामद की गई। इसके साथ साथ दोनों अभियुक्तों पर जनपद के विभिन्न स्थानों में चोरी के आधा दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं। इन दोनों अपराधियों के साथ विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई करते हुए भेजा गया जेल। देखिए एक रिपोर्ट अरविंद कुमार श्रीवास्तव के साथ। किस तरह के आरोपी हैं और ये इनसे क्या बरामद हुआ है? देखिए, थाना उत्तर की पुलिस द्वारा जो है एक सराहनीय कार्य किया गया है और शहर में लगातार जो है कुछ चोरी की घटनाएं बढ़ी थी, बाइक चोरी की। तो
टी सर्किल की सभी पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में जो है आज चेकिंग के दौरान झील की पुलिया के पास से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से जो है मौके पर से 3 और कुल 5 जो है चोरी की बाइकें बरामद की गई हैं। इसमें से जो बाइकें बरामद की गई, एक बाइक जो है थाना रामगढ़ से चोरी हुई थी, एक थाना दक्षिण से, 2 थाना उत्तर से और एक दिल्ली से चोरी हुई है। इन 5 बाइकों को बरामद किया गया है उनकी निशानदेही पे और इनको जो है अभी माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इसमें 2 अभियुक्त हैं, अमृतलाल और मुकेश। इन दोनों पे जो है मतलब आधे दर्जन के आसपास जो है अभियोग पहले से पंजीकृत है। सर इस गिरोह में और भी लोग शामिल हैं क्या? अभी देखिए पूछताछ इसमें चल रही है। इनके लोकेशन और सीडीआर के आधार पे और भी तथ्य जानकारी की जा रही है कि कहीं और भी अगर इन्होंने चोरियाँ की हैं तो वो भी हम बरामद करेंगे। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया लाइव चैनल। इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर आ रही फिरोजाबाद से। दिनांक 2/9/2023 को जनपद फिरोजाबाद जिले के अधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार सिंह की अध्यक्षता में तहसील टूंडला में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसडीएम अन्य अधिकारी कर्मचारियों के साथ सुनी गई फरियादियों की फरियादें सुनकर उनके समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को दिए गए दिशा निर्देश। कुछ समस्याओं का समाधान करने के लिए मौके से टीमों को भी किया गया रवाना। जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार सिंह के द्वारा दी गई जानकारी में बताया कि संपूर्ण समाधान दिवस तहसील टूंडला में आज 151 शिकायतें पत्र आई, जिसमें से 7 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। शिकायतों के निस्तारण के लिए 7 दिन के अंदर का समय दिया गया है। 7 दिन के अंदर बाकी फरियादों को किया जाएगा निस्तारण, जिसमें कुछ शिकायतें जमीन संबंधित अवैध कब्जा, भूमाफिया एवं अन्य से जुड़ी निस्तारण। वहीं पर उपस्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी के द्वारा दी गई जानकारी में बताया कि पुलिस विभाग से संबंधित 5 शिकायतें पत्र आए, जिनको सुनकर तत्काल किया गया निस्तारण। अपील करते हुए कहा कि जिला अतिनेत्र अभियान चल रहा है, जिसमें 6025 सीसी कैमरे लग चुके हैं। इसी अभियान में अपना योगदान करें। देखिए एक रिपोर्ट अरविंद कौर श्रीवास्तव के साथ। कितनी शिकायतें पुलिस को लेकर देखिए अभी तक 5 शिकायतें पुलिस को लेकर आई हैं उसके निस्तारण के लिए। कुछ शिकायतें ऐसी थी जो जमीन विवाद से संबंधित थी, उसमें ज्वाइंट टीमों को जो है भेज दिया गया है और शाम तक उनका निस्तारण कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो पुलिस संबंधित शिकायतें थी उसमें कुछ में मुकदमे दर्ज कर दिए गए और उनका भी निस्तारण जो है समय के अनुसार कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो हम लोग काम कर रहे हैं। आज मैं एक अपील और करना चाहूँगा जनपद वासियों से कि ऑपरेशन त्रिनेत्र चल रहा है, जिसमें सीसीटीवी भारी संख्या में लगाए जा रहे हैं। फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में 6000 के ऊपर सीसीटीवी लग चुके हैं, तो सभी लोग सीसीटीवी लगवाएं और उसकी जो फीड है और उसका जो एक सीसीटीवी का कम से कम जो है रोड की तरफ में उसको कर दें, सो दैट कि वो जनपद में हम लोगों को सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा हो। अपराधियों में भय रहे कि यदि वो किसी प्रकार की कोई गलत एक्टिविटी करते हैं तो सीसीटीवी में जरूर कैद हो जाएंगे। इसको एक जन आंदोलन बनाना है। हमारे प्रधान और ब्लॉक प्रमुख सभी से मीटिंग हुई है, सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। नगरवासियों से और जनपद वासियों से भी मेरा आह्वान है कि इस अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और शहर को एक सेफ सिटी बनाने में मदद करें। सर सीसीटीवी कैमरा को लेकर के करीब कितना लक्ष्य रखा गया जनपद फिरोजाबाद में? देखिए 6000 तो ऑलरेडी लग चुके हैं, पर डे 100 के हिसाब से लगभग सीसीटीवी लग रहे हैं। तो जितने हमारे गांव हैं, हर गांव में हम उसको सीसीटीवी से आच्छादित करना चाह रहे हैं। रूरल एरिया को भी, तिराहे चौराहों को भी करना चाह रहे हैं और इससे लगभग मेरे ख्याल से 10,000 के आसपास सीसीटीवी जो है वो फाइनल हमारे लगेंगे जनपद के अंदर। और उसको ये प्रक्रिया अनवरत है, इसको लगातार हम इसको लगाते रहेंगे और इसके मेंटेनेंस के लिए भी जो कमेटी है 5-5 लोगों की, उस कमेटी को बनाया गया है। वो कमेटी इसको यदि कोई गड़बड़ी होती है तो उसको अवगत भी कराएगी और उसको थैंक यू। आज संपूर्ण समाधान दिवस तहसील टूंडला में आयोजित किया गया है, जिसमें मैं एसएसपी था, इसके अतिरिक्त सभी विभागीय अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और अभी तक 151 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें 7 के मौके पर निस्तारण किया गया है। बाकी शिकायतों के बारे में बताया गया कि आज ही टीम भेजें और इसके अतिरिक्त 7 दिवस के अंदर सभी शिकायतों का सही निस्तारण करें। कई रिपीटेड शिकायतें भी आई हैं उसमें, लेकिन मामला निकल आया है कि वाद भी दर्ज है विभिन्न माननीय न्यायालयों में। तो उसके संदर्भ में भी अधिकारियों को बताया गया है कि जो प्रार्थी हैं उनको सही चीज़ों सही तथ्यों से अवगत कराया जाए और उनके समस्या का समाधान कराने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए। जो आज शिकायतें प्राप्त हुई है उसमें सबसे ज़्यादा राजस्व विभाग से और इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग, बिजली विभाग, राशन कार्ड से संबंधित शिकायतें और अन्य विभागों से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं। सभी अधिकारी मौजूद हैं और उनको ये बताया गया है कि सभी शिकायतों का सही निस्तारण करें, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की यही मंशा रहती है, शासन की यही मंशा है कि जो भी प्रार्थी आता है
उसको सही निस्तारण करके किया जाए, उसके संबंध में सभी अधिकारियों को टाइम टू टाइम और आज भी ये निर्देश दिए जा रहे हैं। सर, जमीन पर कब्जे को लेकर कितने प्रार्थना पत्र मिले आज आप तहसील रोज में? जमीन के कब्जे को लेकर भी काफ़ी प्रार्थना पत्र आए हैं। उसके लिए हम लोगों ने एक मैकेनिज्म यहाँ बनाया हुआ है कि राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की टीम संयुक्त रूप से जाती है और समाधान का प्रयास वहाँ पे मौके पर ही करती है। तो इसमें जितनी भी शिकायतें संभव हो पाती है हल कराने पर उसको करते हैं, और कहीं विधिक अड़चन होती है तो उसके संबंध में भी हम लोग विधिक तरीके से कार्रवाई करते हैं। थैंक यू। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया लाइव चैनल। इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर आ रही बिहार से। स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। शिक्षा के मंदिर में अपने बच्चों को उच्च शिक्षा लेने के लिए परिजन भेजते हैं ताकि पढ़ लिख कर अपने परिवार और देश दुनिया का नाम रोशन कर सकें। लेकिन सहरसा के एक प्राइवेट स्कूल शांति शिक्षण संस्थान में स्कूल के डायरेक्टर अजीत विश्वास का बेटा नाबालिग लड़की के साथ स्कूल में एक कमरे में 2 वर्षों से बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देता है। इस कुकर्म में स्कूल की शिक्षिका अनीता मिश्रा पीड़ित लड़की को स्कूल के रूम में ले जाती हैं और बाहर से रूम का ताला लगा देती हैं। डायरेक्टर आरोपी बेटा सम्राट विश्वास वीडियो वायरल करने की धमकी भी पीड़िता को देता है। लोक लज्जा के कारण पीड़ित नाबालिग लड़की अपने परिजन को कुछ भी नहीं बोली है। मामला 2017 से लेकर 2019 के बीच का है। इसी दौरान लड़की ने अपना नाम दूसरे स्कूल में लिखवा लिया। बाद में पटना पढ़ने गई जहां वो हमेशा डिप्रेशन में रहती थी। अचानक तबीयत खराब होने के बाद परिजन को पता चला, जिसके बाद उसे पटना के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान सारी बातों का पता चला। जिसके बाद परिजन ने सदर थाना में 28/8/2023 को प्राथमिकी दर्ज कराए। स्कूल के डायरेक्टर के बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया। इसी दौरान आरोपी महिला शिक्षिका को भी पूछताछ में पुलिस लाई, लेकिन पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया। नाबालिग पीड़िता की सुने तो किसी तरह न्याय की मांग कर रही है। वह आरोपी महिला शिक्षिका को छोड़े जाने पर पुलिस पर भी सवाल खड़ा कर रही है। वही स्कूल के डायरेक्टर अजीत विश्वास भी मानते हैं अगर कहीं भी इस तरह की बातें होती है तो गलत है, लेकिन इस प्रकरण में जांच होनी चाहिए। इसके बाद दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस बाबत में पुलिस अधीक्षक उपेंद्रनाथ वर्मा माने तो मामला सामने आया। मुख्य आरोपी को जेल भेजा गया। बाकी आगे की जांच चल रही है। जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको कार्रवाई की जाएगी। देखिए एक रिपोर्ट विकास कुमार के साथ। हेलो, रुकना, बैठा बैठा बैठा, रुके डर भरा है ना, बड़े ना पीछे हटवाता है। गणेश बाबू हमरा आर के काम में हस्तक्षेप करे लाग छै नया दिक्कत छै। हटी आगू से अहों के नहीं तो दे देबे या में दे दियो ने की करबे जब लोग फंसइए में लाठी। तो क्या करना है? मेरे साथ यही घटना घटी कि सम्राट विश्वास, जिनका नाम सुनीत विश्वास है, उन्होंने मेरे साथ रेप किया और बहुत कम एज के कारण मैं घबरा गई, मैं डर गई। उन्होंने मेरा वीडियो बना के मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की और वो मेरा लगातार रोज़ रेप करते रहे, जिसकी वजह से हम स्कूल आना बंद कर दिए। लेकिन फिर भी मैं घर वालों को नहीं बताई थी, तो घर वाले को लगा कि शायद स्कूल नहीं जाना चाहती है या फिर कोई और दिक्कत है, इसीलिए तबीयत ख़राब है इसीलिए। लेकिन जब भी स्कूल जाती थी वो डेली मेरा रेप करता था। लाइब्रेरी के बगल वाले रूम में लॉक कर देता था, लाइट ऑफ करके वो मेरा रेप करता था। ये प्रकरण कितने सालों तक चला? ये प्रकरण 2017 से 2019 तक चला। अब तुम क्या चाहती हो? अब हम यही चाहते हैं कि उसको फांसी मिले कोर्ट से। यही मेरा दरखास्त है कि उसको फांसी मिले। अनीता मिश्रा को भी सख्त से सख्त सजा दिया जाए। अनीता मिश्रा क्या करती थी? अनीता मिश्रा हमको रूम में ले जाती थी, ज़बरदस्ती ले जाती थी। हम उनको मना करते थे फिर भी वो ले जाती थी। मेरा हाथ पकड़ लेती थी, मरोड़ देती थी, वो ले जाती थी और फिर उसके बाद वो रूम में ले जा कर के बंद कर देती थी और बाहर से ताला लगा देती थी। जब सम्राट विश्वास का मन भर जाता था मेरे से तो वो बाहर से ताला खोलती थी और फिर वो रूम वापस क्लास में ले जा के छोड़ देती थी। और ऐसा वो 2019 तक करती गई।
अभी हाल के दिनों में उसने फ़ोन भी किया था तुम्हें? उन्होंने नहीं फ़ोन किया, वो अपने सम्राट विश्वास किसी और के थ्रू फ़ोन करवाता, किसी दोस्त के थ्रू मेरे बारे में पता करवाता। अनीता मिश्रा के पास मैंने एक बार कॉल किया था, उनको मैंने बोला था कि आप बहुत गलत कर रही हैं मेरे साथ, लेकिन वो बोली कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी फैमिली नहीं बिलीव करेगी, हमारा बहुत पहुँच है। और सम्राट विश्वास धमकाता था कि तुम्हारे माँ बाप मेरा क्या उखाड़ लेंगे, उनको बहुत अब खुद पे घमंड था। और ये बात की वजह से हम अपने घर वाले को नहीं बता पाए और डिप्रेशन में चले गए, क्योंकि सोसाइटी सिर्फ लड़की को जज करती है। हमारी सोसाइटी ही ऐसी है कि वो लड़की के कैरेक्टर पे उंगली उठाती है। मेरे कैरेक्टर पे उंगली नहीं उठे, इसीलिए हम चुप थे इतने दिन से, लेकिन अब और बर्दाश्त से बाहर है, अब हम चुप नहीं रहेंगे। तुम क्या चाहती हो? हम चाहते हैं कि कोर्ट में से उसको फांसी मिले, उसका स्कूल जला दिया जाए, तोड़ दिया जाए, जितना हो सके पब्लिक भर के उस पे इतना कोर्ट को प्रेशर, पुलिस को, आखिर पुलिस कितना पैसा लिया अनीता मिश्रा को छोड़ने का, क्यों उसको छोड़ दी? प्रशासन आखिर कर क्या रही है? सरकार के कान में तेल डाल के सोए हुए सरकार, उनको दिख नहीं रहा है? उनकी वजह से हमको एंजाइटी अटैक आ रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, हम कांप रहे हैं, घबरा रहे हैं। सरकार क्या कर रही है, क्या देख रही है प्रशासन? मेरा यही दरखास्त है कि वो एक्शन ले इसके खिलाफ, ताकि आगे चलकर मेरे जैसी और लड़कियों के साथ नहीं हो। अभी भी वो किसी ना किसी के साथ करता होगा। आरोप लगा है आपके छोटे पुत्र के द्वारा जो है सो लड़कियों के साथ जो है सो छेड़खानी की जाती थी, अक्सर थाना में मामला दर्ज किया गया, क्या कहेंगे? यौन शोषण का मामला, यौन शोषण का मामला दर्ज किया गया। क्या कहना है सर, जब हमारे बच्चे को आपने पटना से अरेस्ट कर ही लिया, जो कि एक नई शिक्षा नीति के मीटिंग में गया हुआ था, और कहना कुछ नहीं है, कहना तो कोर्ट में जब प्रूफ अभी क्लियर नहीं हुआ है। आपने हमारे बच्चे को अरेस्ट किया, उसे जेल भेज दिया, मैं एक शब्द भी उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, भेज दिया, लेकिन मामला जब तक कोर्ट में है, जब तक सारी बातें क्लियर नहीं हो जाती है, सारी बातें सिद्ध नहीं हो जाती है, क्या उनके तरफ से जो बयान दिया जा रहा है या मीडिया में के माध्यम से जो इतनी खबरें छापी जा रही है, वो सच्चाई को जानने का प्रयास किए, क्या बात है, क्या बहुत बड़ी कहानी है। और अभी मैं सिर्फ जो जैसा बोल रहे हैं मैं वैसा ही देख रहा हूं और बर्दाश्त कर रहा हूं। दिन आएगा, अंधेरा घटेगा और छटेगा, फिर समय आएगा, मैं लड़ूंगा। अगर मेरा बच्चा दोषी होगा तो उसे आजीवन कारावास दे दीजिए, मुझे कोई गम नहीं है। लेकिन अगर उसका दोषी आप सिद्ध नहीं कर पाए, तब फिर आप क्या करेंगे, हमारी क्षतिपूर्ति कैसे करेंगे, इसका भी मुझे चाहिए। अभी तो बहुत सारे, जिस बच्चे को पनिशमेंट दिया गया वो भी बच्चे इसके अगेंस्ट में बोल रहे हैं, जिस बच्चे को स्कूल से निकाला गया उसके हरकत से, उसे भी आप ये कर रहे हैं, वो भी लड़का ये कर रहा है। कोई फेसबुक पर सिगरेट पीते हुए बयान दे रहा है, तो क्या है, कहाँ हमारी से, अब लोग उसको टिक लगा रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। कहाँ गई हमारी शिक्षा? 40 वर्षों से इस तरह का अगर घटना घटता है तो कितना सही है ये? इसकी सर जांच होनी चाहिए। ये शिक्षा के इस माहौल में इस तरह की बातें अशोभनीय शोभा देती है क्या? ये तो सुनने में ये लगता है। आपके बेटे पे आरोप है, आपकी शिक्षिका पे आरोप है, जो उनके द्वारा लाइब्रेरी में लड़की को ले जाकर के ताला मार दिया जाता था और आपके लड़के के द्वारा जो गलत काम किया जाता था। सर, अगर एविडेंस ऐसा है आपके पास तो दीजिए ना। मुंह से बोलकर एविडेंस नहीं होता है। अगर वो शिक्षिका ले जाती है तो उसे पनिश कीजिए। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम अजीत कुमार विश्वास। मैं बच्चे कुछ दिनों पहले एक प्राइवेट स्कूल में एक नाबालिग बच्ची के साथ उस स्कूल के जो डायरेक्टर हैं उनके बेटे के द्वारा गलत काम करने का एक मामला प्रकाश में आया था। उस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज करते हुए जो एक्यूज्ड हैं उनको अरेस्ट भी कर लिया गया और साथ ही साथ उसमें उनके साथ जो और भी कोई एक्यूज्ड हैं उसके संबंध में भी छानबीन की जा रही है।
और इस मामले में जितने भी लोग शामिल हैं उन सभी पे छानबीन करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।